since it's we have to recite the poem. It is second class, Unit 5, Chapter Zoo Manner, and it is a poem. So let us start this. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. I repeat. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He's very proud of his noble bump. Next. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he's as wise as you or me. Right? So, how many animals' names are there? As you can see in this poem, you have got the camel, then chimpanzee. So here it is chimpanzee and here it is the camel. Other animals also you can see here, and if you want you can write the names of these animals. Next. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Penguin intelligent होती है, आप अगर उसको कोई रिमार्क देते हैं तो वो समझ जाती है. So, and the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you'll always be welcome at the zoo. Treat them as well as they do you, and you'll be always welcome at the zoo. So, what is the name of the poet? After poem, you should focus on the name of the poet also. As it is here, you better practice it. Here in the book only, you write 2 times, 3 times, 4 times till you learn the name of the poet. Then there are new words: proud, noble, wise, penguins, strutting, remarks. I repeat: proud, noble, wise, penguins, strutting, remark. After that, this question exercise is there, which we can do later on, right? Now let us start the new lesson for the reading purpose of this unit. Okay, children, as you can see, it is a rabbit. It is a rabbit. So rabbit is also called bunny. Bunny. Okay, so this bunny is quite funny, so its name is Funny Bunny. Correct? So one day a nut fell on the Funny Bunny. Ouch! The sky is going to fall, said Funny Bunny. I must tell the king. On the way he met a Henny Penny. This is Henny Penny. Yes, hen से बना हैनी और रैमिंग वर्ड दे दिया इसको penny. So इसका नेम हो गया Henny Penny. So on the way he met a Henny Penny and he told him also that okay, the sky is going to fall, or he was going to tell the king about this event. So Honey Penny said, okay, I will also come with you, and both of them started to approach this king. Then on the way they met the third friend, that is Cocky Locky, a cock.
Then Cocky Locky also said, okay, I will also come with you to the king. The next friend is Lucky Ducky. There now, how many friends are there now? 4. Funny Bunny, Henny Penny, Cocky Locky, and Lucky Ducky. After that, on the way, they met another friend. This is पूजी गूजी गूजी, ये गूज है, इसको कहेंगे हम गूज. गूज से बन गया गूजी, और इसको राइमिंग बनाने के लिए इसने बना दिया पूजी गूजी. ठीक है, तो अब कितने फ्रेंड हो गए? कितने फ्रेंड्स हो गए? 5. कौन कौन से? फनी बनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी, and Pussy Goosey. Then on the way they met a very dangerous animal, and that is fox. Fox is supposed to be very clever animal. So fox जैसे उसको देखता है कि there are so many cute small animals, उसके मुंह में आ जाता है पानी, और उसके शातिर दिमाग में आ जाता है एक प्लान कि मैं इनको खा जाऊंगा. तो बोलता है ओके, आपको किंग के पास जाना है तो किंग का रास्ता तो इधर है, इस गुफा में होके जाता है, ये देखो. तो ये बता देता है कि भाई इधर से जाना है, क्योंकि सारे जो एनिमल होते हैं इनोसेंट होते हैं, वो उसके बताए हुए गुफा में घुस जाते हैं, और फिर ये जानवर, बदमाश जानवर, उनको खा जाता है, और इस तरह से उनके ऊपर सचमुच आसमान गिर जाता है, स्काई फॉल हो जाता है. अब ये भी तो बात वही होगी ना कि आसमान गिर गया, आसमान टूट पड़ा, तो आसमान ही तो टूट पड़ा कि उन सबको उस फॉक्सी ने खा लिया. तो बच्चों, आपने ये स्टोरी देखी. अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे. ठीक है, तो एक ये चीज़ देखिए, इसमें मैं एक एलिफेंट का जो पोएम है, एक बार इस एलिफेंट के पोएम को मैं डिस्कस करना चाहूँगी. ओके, द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट. आपने देखा ना हाथी कैसे झूम झूम के चलता है. सो द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल, ही इज सो फैट, he has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. फिंगर्स तो नहीं है लेकिन इसके टोज है. इसको हम क्या कहते हैं? टोज कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? हम टोज कहते हैं. जो पैर होते हैं एलिफेंट के, इनको हम कहते हैं टोज. क्या कहते हैं? टोज. यस. The elephant walks like this and that. He is so tall, he is so fat. He has no fingers, but he has some toes. But oh my goodness, what a big nose. हम लोग की नोज छोटी होती है, एलिफेंट की नोज बड़ी होती है. इसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक. हम इसको कहते हैं ट्रंक. करेक्ट. नाउ अब हम चलेंगे इस एक्सरसाइज पे. राइट, इट इज नाइस एक्सरसाइज. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस रीड दिस. ओके, जब इस तरह की कोई एक्सरसाइज हो तो आपको सबसे पहले क्या फोकस करना है? ये वाले वर्ड्स पे. करेक्ट. इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको मीनिंग आपको कराएगा, तो आप इन ब्लैंक्स में फिल करोगे, और
फिर ये स्टोरी बन जाएगी. लेट अस स्टार्ट दिस. टाइटल देखें वाला इजी, इट इज़ वेरी इजी. अ विजिट टू माई विलेज. विजिट करना, जाना. माई विलेज, गाँव. तो गांव के वे में जाओगे तो आपको क्या क्या नज़र आएगा. वी आर नॉट सो लकी दैट हम लोग गांव नहीं देख पाते हैं. तो लेट अस सी थ्रू दिस स्टोरी, थ्रू दिस fill in the blanks. Okay. In June, we went to a. Now, what is this? It is a picture of a village. So, we will put village here. Number 1. Where my. Now, what is this picture? It is picture of a grandmother. So, you can write here, grandmother lives. She has a farm. On her farms, there are many animals. There are 2. What is this picture? It is easy. Horses. So, this is 3. Then this picture, this picture, this picture, this picture, this picture, this picture. You can get the names from this help box. What is this hay? ये घास के गट्टर को क्या कहते हैं? घास के गट्टे को क्या कहते हैं बताओ. इसमें है हे. तो ये हे हो जाएगा. जो चीज़ इजी है वो तो इजी है. देन ये तो मिल्क है, तो मिल्क में है ऑलरेडी देयर. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? अब जब सब पढ़ लेंगे जो बचेगा आप इसमें डाल दीजिएगा. लास्ट में ये क्या है? डैश ऑन द फॉर्म. तो इसमें क्या हो सकता है? कॉक, हेन, मिल्क, डॉग्स, किचन, पॉन्ड. यहाँ पे पॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉन्ड. तो ये आपका जो विजिट है, यात्रा का वर्णन कंप्लीट हो गया जब आप गांव में गए. अब ये देखिए, ये क्या है? कॉम्पोजिशन कॉर्नर. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अगेन देयर इज अ हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस हेल्प बॉक्स पे होना चाहिए. और ये पिक्चर है, ठीक है. तो अगर आप ध्यान दें इसमें लाइंस, फ्लावर्स, buzzed, to be buzzed. So this is a dash. ये क्या है? This is a. ये क्या है? बोलो. It has dash on its wing. तो this is a. यहाँ पे तो फ्लावर है, तो ये एक बी है. तो यहाँ पे सिंगुलर चीज़ होनी चाहिए. ए वर्ड है. आप इसमें फ्लावर्स भी नहीं लगा सकते, बज्ड भी नहीं लगा सकते, लाइन्स भी नहीं लगा सकते, टू भी नहीं. तो बचा क्या? बी. सो आपने यहाँ पे लिखा बी क्योंकि सिंगुलर है. उसके बाद इट हैज़ डैश ऑन इट्स विंग. सो इसके बाद इसकी जो विंग्स है उस पर क्या होती हैं? इसके पंखों में क्या बनी हुई हैं? तो लाइन्स. लेट्स सी सही है कि नहीं. इट हैज़ डैश एंटेनास. इसके एंटेनास कितने हैं? यस. हाउ मैनी एंटेनास? ये जो ऊपर निकले रहते हैं इसको हम एंटेनास कहते हैं. इससे ये खुशबू ले लेके जाती हैं. तो ये कितने एंटेनास हैं? 2. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2. देन इट बज राउंड द डैश. राउंड द डैश. अभी इसके चारों तरफ क्या कर रही हैं? बज कर रही हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्लावर्स. इट बज राउंड द फ्लावर्स. क्या आएगा? फ्लावर्स. राइट. डैश. इट हैज़ डैश and came to the zoo. It has dash. अब it buzzed and buzzed. It buzzed and came to the zoo. तो ये भी हो गया आपका. अब आपके पास ये एक पज़ल है. इस पज़ल में आपको क्या करना है? हेल्प द बी टू रीच इट्स होम. व्हाट आर द थिंग्स एंड मेट ऑन द वे विद राइम द बी. लेट्स सी. ओके. सो ये हो गई आपकी बी और ये इसका हो गया होम. बी चली मिली पी से. क्या मिली? पी से मिली. पी से मिलके फिर वो किसके पास आई? एक ट्री के पास आई. ये भी साउंड में राइमिंग हो रहा है. फिर ट्री से चल के वो उसके पास की मिल गई. की से फिर वो टी मिल गई. चाय. सबकी साउंड हो गई और लास्ट में उसका हाइव मिल गया. HIVE. मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं बताओ? HIVE. तो ये सारी चीज़ें आपने रिकॉग्नाइज कर ली. इट इज़ पी, इट इज़ ट्री,
it is key, and it is tea. So now it is clear. अब आप इसको रोक के भी देख सकते हैं. उसके बाद है आपका look at the picture and fill in the blanks. Yes, look at the picture and fill in the blanks में आपके पास है ये lion, LION, then tiger, wolf, deer, owl, jackal, monkey, bear, chimpanzee, जिराफ. पहचान लिया आपने इस सारे? ठीक है, ये आपने एनिमल्स के नेम्स फिल करने हैं. उसके बाद है आपके पास roar like a lion, bark like a dog, neigh like a horse, moo like a cow, quack like a duck, chirp like a sparrow, bleat like a goat, chatter like monkey, grunt like a pig, hiss like a snake. So these are the sounds of animals. Sounds of animals. These are the sounds and these are the names of the animals. The sound and animals. So you can write it like this thing. अब ये तो पोएम हो गई. आप लिखोगे इसके लिए a lion roars. बस आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे. A horse neighs, a duck quack, a goat bleat, a pig grunt, a dog bark. ऐसे सेंटेंस आपको कॉपी में लिखने हैं. दिस टू बी डन इन द कॉपी. दिस राइटिंग, एक्स्ट्रा राइटिंग, जो बुक की एक्सरसाइज है वो कभी नहीं करने की जरूरत है आपको कॉपी में. एक्स्ट्रा मैंने ये लिखने को आइडिया दिया है, आपको ये करना है. अ काउ मूव, अ स्पैरो चिर्प, अ मंकी चटर, अ स्नेक हिस. So this you have to do in your copy. You have to join this dot and you will get. And do you recognize this animal? It is dinosaur. Okay. So you can complete this. So now it is your chapter which is completed. We will do the next exercise in the next video. Thank you. Children, एक बार फिर से मैं बता दूं, जो काम करो आप बहुत अच्छे से करो. ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये आपकी होमवर्क है. इसे आप फिनिश करो. यहाँ पे मैंने जो आपको लिस्ट बनाने को बोला है आप वो फिनिश करो. और ये सब आप करके बुक में रखेंगे. कॉपी में रखने की ज़रूरत नहीं है. कॉपी में सिर्फ सेंटेंस बनाएंगे.